हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो चलो आज देखते हैं। यहाँ पर मैंने 9th स्टैंडर्ड का साइंस का पार्ट 2 का लेसन नंबर 6 का एक्टिविटी किया है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलो देखते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, प्लीज़। आई हैव रिक्वेस्ट यू। Let's go start this video. Kingdom Planty. They have the two groups. One is Cryptogams and second is Phanerogams. किंगडम प्लांटी के दो ग्रुप्स होते हैं। एक होता है क्राइपोटोगम्स, नेक्स्ट होता है फेनेरोगम्स। क्राइपोटोगम्स में और 3 पार्ट होते हैं। वो होते हैं थैलिडोफाइटा, बायोफाइटा एंड पेरिडोफाइटा। Okay, you have understand means this is our kingdom planty. They have the two groups, Cryptogams and Phanerogams. Cryptogams have 3 groups like Theriodophyta, Pyophyta and Peridophyta. Okay, now here we have the Phanerogams 2 groups is Gymnosperm and Angiosperm. Angiosperm have 2 groups, dicotyledons and monocotyledons. Now you have understand which have which group. Okay, you have understand this. Now I will explain you what is this. Let's first see Cryptogams. Our Cryptogams is this. Let's see here. Cryptogams are non-flowering plants and they do not produce the seeds and flowers. Its main द क्राइपोटोगम्स एक ऐसा झाड़ है जो फ्लावर भी नहीं उगाता है और सीड्स भी नहीं देता है। ऐसे झाड़ को हम क्राइपोटोगम्स कहते हैं। सी हियर इज रिटन क्राइपोटोगम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। They do not produce and flowers. You can also do this activity. You want to do it, then you can also do this. Let's see next. Next is the Phanerogams. They have the special structure for reproduction and the production seeds. Produce the seeds. They store the food and embryo. इसका मतलब होता है फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम्स एक ऐसा झाड़ है जो एक मिनट जो जिसके पास ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जो फिर से रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये फिर से उगा सकता है, फिर से मतलब कोई झाड़ फिर से उगता है। ओके, आप समझ गए होंगे मेरा मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जो इसके पास ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो क्या रिप्रोड्यूस कर सकता है उसकी झाड़ को। नेक्स्ट होता है प्रोड्यूस सीड्स एंड देयर स्टोर द फूड इन एम्ब्रियो। मतलब वो सीड्स में सीड्स जो होते हैं उसके it's a seed. Okay, it's a seed. Let's remind it's a seed. Okay friends, it's a seed and under the seeds we have an embryo. It's a embryo under the our seeds. Okay, and under this embryo under this embryo they store the food. Okay, they store their foods.
ये जो फेनेरोग्राम्स होता है उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे वो खुद को फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं, और वो उनके पास जो बीज होता है उनके अंदर एम्ब्रियो होता है जिससे वो उनका खाना उस एम्ब्रियो में रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम थैलिडोफाइटा। थैलिडोफाइटा एक क्राइपोटोगम्स का ग्रुप में। ओके, लेट्स सी। Here is our definition written. Let's see what's this. This plant grow mainly in water. They do not have a specific part like the roots, stems, leaves and flower. They have a soft and fabric like pulp. Its name, what here saying, this plant grow mainly in water. Means which is this plant? They grow in water. Okay, they are mainly grow in the water. Okay, we can highlight this. Okay, here next, मतलब ये जो झाड़ होता है थैलिडोफाइटा होता है, ये ज़्यादातर पानी में ही प्रेजेंट मिलता है हमें, ज़्यादातर पानी में ही पाया जाता है। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते। दे डू नॉट हैव द स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। मीन्स दिस प्लांट डू नॉट हैव रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। Let's see, I have here draw something for you. Here is our tree. It's our tree. Okay. Here is our tree. Here have flowers, leaves, everything, roots. Okay. But here written, the roots and stems, leaves and flower, they are not in that. Means these leaves are not, this flower also not, these roots also not here. Then this plant is like sometime they are like this and form of this. Stop 1 minute, please. 1 minute, friends. Like this structure, they do not have but roots. They are in a form of green. Okay, here I draw in purple. Okay, it's a form of green color and it do not have roots, stems, leaves and flower. It's type of, you can see that on a, आपने कभी फ्रेंड्स आप अगर बीच पे कोई नाली की इधर देखा होगा आपने, जो पानी होता है उसके जो पानी का ऊपर का जो लेयर होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन वो लग जाता है, वो जो प्लांट होता है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख लो, दे हैव अ स्पेसिफिक पार्ट लाइक, they do not have, okay, they do not have their plant parts. Which part they do not have? Let's see. They do not have a specific part like roots, stems, leaves and flower. They do not have roots, stems, leaves and flower. We can highlight this. Okay. Next is they have a soft and fabric like body. Means they have a and soft and fabric like body and very soft. If you have seen this plant, okay, can I show this video? Can I show this photo? I will show you this photo of this plant. I will show you photo. Cremona species to giant kelp. See friend, I am talking about this plant. This we call the algae in English. हम इसे इंग्लिश में algae बोलते हैं, और ये नदियों पे या गंदे पानी में ज़्यादा कर उगता है, मतलब फ्रेश वाटर में उगता है, मतलब ठंडे ठंडे पानी में जो होता है
कहाँ पर उगता है ये ज़्यादातर, जैसे कि नालियों में भी देखा होगा आपने बहुत बार। तो यहाँ पर ये इस तरह ग्रीन ग्रीन होता है, इसको कोई रूट्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होते हैं, लीव्स नहीं होते, इसमें फ्लावर्स भी नहीं होते, ये एकदम ऐसे ही होता है। आप इसके बारे में गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, अलगे करके आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ देखने मिल जाएंगे इसके। चलो फिर से आते हैं हमारे ये लेसन पे, हमने ये समझ लिया था। नेक्स्ट है हमारा फाइटर, जो क्राइकोडोर्म्स के पार्ट हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं क्या होता है ये भी। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस। मतलब ये जो बायोफाइटा प्लांट्स होते हैं, इसका जो पूरा ग्रुप होता है उसे हम एम्फीबियन प्लांट्स कहते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर रिप्रोडक्शन। ये मॉइस्ट सॉइल में पैदा होते हैं ये वाले झाड़, और मगर इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए रहता है। क्यों चाहिए रहता है? फॉर रिप्रोडक्शन। इनको फिर से उगने के लिए मॉइस्ट सॉइल में उगना पड़ता है। They are without true roots, stems and leaves. मीन्स इनको रूट्स, स्टेम्स, लीव्स नहीं होते हैं। इनको रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेरिडोफाइटा। Let's see where is Peridophyta. The Peridophyta is the cryptogam part. Let's see what's this. See the cryptogams. Sorry, Peridophyta. Peridophyta. The group of this plant have well developed root, stems, leaves. मतलब ये जो प्लांट के जो ग्रुप होते हैं, पेरिडोफाइटा के जो प्लांट के ग्रुप रहते हैं, ये पहले से ही डेवलप्ड होते हैं। किस किस में होते हैं डेवलप्ड? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम्स एंड दे हैव लीव्स। ओके, नेक्स्ट, दे डू नॉट बियर द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो प्लांट होते हैं ये फ्रूट्स नहीं कर, ये इनका जो ये कभी भी फ्लावर्स नहीं देते और फ्रूट्स नहीं देते। ओके, नेक्स्ट इज अवर जिम्नोस्पर्म. What is a gymnosperm? Let's see. Okay, gymnosperm is the part of pterodoms. Okay, let's see here gymnosperm. This plant do not form a fruit and their stems are without branches. Means the gymnosperm is the plant that do not form a fruit and they are without branches. मतलब ये जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है इसको ब्रांचेस नहीं होते हैं ट्री पे और ये फ्रूट्स भी नहीं देते हैं। मीन्स फ्रूट्स जो होते हैं हम लोग खाते हैं, ये वाले फ्रूट्स ये लोग नहीं देते हैं। ओके, their leaves are grown. Okay, their leaves are grown. Now you understand this line also. Let's erase everything. Okay, next is our angiosperm. What is the angiosperm? Let's see here. Angiosperm. The flower this plant bears are their reproduction organ. The flower this plant bears and their reproduction organ. इसका मतलब यहाँ पर होता है कि ये फ्लावर्स देते हैं. ओके, दे बियर्स फ्लावर्स. ओके,
ये जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म, ये फ्लावर्स देता है। ओके, इनके पास रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी होता है। नेक्स्ट है फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड्स आर Rupees formed without fruits. 161 received on phone pay. Received on phone pay. देवियों सज्जनों धन्यवाद। The flowers develop into fruits and seeds. मीन्स इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो फिर बाद में किस में होते हैं? फ्रूट्स और हाँ, they produce it and are formed with fruits. मीन्स जो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो फिर बाद में फ्रूट्स या सीड्स में फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज द सीड्स आर कन्वर्ट, दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। इनके जो सीड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट इज योर dicotyledons and monocotyledons. Let's see first dicotyledons. The seeds which divide into two parts means जो बीज होते हैं या मतलब सीड्स होते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, वो अगर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? डाइकोटिलेडॉन्स। और मोनोकोटिलेडॉन्स क्या होते हैं? विच cannot divide into two parts. सीड्स होते हैं, अगर उन्हें आधा करने की कोशिश करें हम तो वो आधा नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? मोनोकोटिलेडॉन्स। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? I have explained everything. If you want to write the definitions or do it this activity, you can do it. Kingdom planting, this name, you can do it this activity if you want to do it. You want to write the definition, you can stop the video and write it. I will show you one more time. Thank you for seeing, students. Bye bye and subscribe to my channel.